लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस्ड, क्या मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे ले रहा हूँ मैं लेक्चर आपका। तो वेयर वी फिनिश्ड, आपको यू मस्ट नो ना कि वेयर वी वर, व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेयर वी फिनिश्ड। क्यों दिया, कोई है आइडिया? मैंने कहा था ना कि लास्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा कुछ ना कुछ, तभी तो आप, यू आर ओनली 3 आर प्रेजेंट, एटलीस्ट यू मस्ट नो कि वेयर वी फिनिश्ड, व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, तो तभी कंटिन्यूटी बनेगी ना उसके आगे। और व्हाट वी फिनिश्ड एंड व्हाट वी स्टार्टेड इन आवर लास्ट लेक्चर, बता सकते हो कुछ? क्या डिस्कस कर रहे थे? नेहा, आप एनीथिंग यू नो? आवाज आ रही नेहा मेरी? हेलो? बीच में निकल जाती क्यों? अनीशा आप बताओ, क्या व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर? सर पेटेंट एक्ट 1970 खत्म किया था हमने पूरा। हाँ, वो हमने वी फिनिश्ड पेटेंट 1970 एक्ट। उसमें जो लास्ट में था कि हाउ टू फाइल द एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्या क्या था? प्रोसीजर्स आर देयर, ठीक है ना? तो व्हाट आर द डिफरेंट क्लेम्स अंडर दैट पेटेंट एक्ट। उसमें एग्जामिनेशन का था कि एग्जामिनर क्या को कितना टाइम मिलता है, तो उस पे जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं उसके लिए कितना टाइम है, तो डिफरेंट टाइमिंग्स वर देयर, विल वी डिस्कस्ड। और फिर हमने बड़ा इन शॉर्ट में हमने आगे उसको टच किया था, नेक्स्ट एक्ट जो है, ठीक है ना? आपके सिलेबस में अगर आप देखो कि व्हाट वाज दैट एक्ट, कोई है मालूम आपको? एनीथिंग यू नो अबाउट इट? वी मतलब जस्ट touched that topic and मतलब just started that topic, that is UPOV, ठीक है ना? आपके है, that is in your syllabus and under topic UPOV। UPOV का मतलब है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। जो मैंने कहा था कि दिस इज important from the agriculture point of view, that is UPOV, Union for the Protection of New Varieties of Plants. So today we will discuss this UPOV. What is this UPOV? What does it mean? What is the history of it and how many countries are involved in it and what is its role? UPOV. So UPOV is an international organization. अभी तक जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की हैं, दे आर ऑल इंटरनेशनल, दे आर नॉट ओनली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक अदर international organization, UPV is also international organization with headquarter in Geneva. Where its headquarter is? It is in Geneva, that is in Switzerland. आगे था कि करंट सेक्रेटरी जनरल है वो have been written that it is Francis Gary. लेकिन you should not remember that, it may be possible that its name might have been changed क्योंकि ये पुराना है इसमें लिखा हुआ, so that is not necessary that you should remember it who is the general secretary. At least you must know कि there is a secretary general of UPOV is there and that is controlled by the secretary general. Then its history, we will discuss what is its history of UPOV. So UPOV was established by the International Convention. How it was discussed? It was discussed by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. किस लिए बनी थी? What is its role? This is for the protection of new varieties of plant. A convention was made regarding the protection of new varieties of plants. जो नई varieties निकलती हैं उसकी protection के लिए. The convention was adopted in Paris. It was adopted in Paris.
which convention was organized. This was adopted in Paris in 1961. It was conducted in 1961, and then it was revised. Again, it was revised in 1972, 1978, and 1991. Means the act which came into existence in 1961 was revised three times, in 1972, then 1978, and 1991. You know, that means that UPOV was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of the Plants. Its purpose was for the protection of the new plant varieties which are developed by the breeders, that is for their protection. And the convention was adopted in Paris. It was adopted means it was made in Paris. It was adopted in Paris in 1961, and it was revised in 1972, 1978, and 1991. The objective of the invention is the protection of new varieties of plants. ठीक है ना, ये इसका पहले भी हमने डिस्कस किया. This is the repetition. This is for the protection of new varieties of the plants by an intellectual property right. जो intellectual property right में दिया हुआ है, according to that right, its purpose is to protect the new plant varieties. UPOV aims to encourage the development of new varieties of plants for the benefits of the society. मतलब this organization encourage the invention of the new varieties of the plants, that is for the benefit of the societies. If new varieties will be developed, then they will be the beneficial for the society. So this act gives protection for the new varieties of the plants. So यहाँ तक I think it's very clear, very simple. You must be clarified about it. Then is this new varieties must meet four criteria under the rules established by UPOV. So here the new variety, because this is for the protection of the new varieties developed by the breeder, that new variety which is being invented, which is being made by the breeder, that is made by the breeder, that should meet the different four criteria are there. That which variety is invented, that must meet the four criteria. So those four criteria are: first is the new plant must be novel. Novel means new. जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि novelty means new. The new plant must be novel, which means that it must not have been previously invented. मतलब कि which is the plant or which is the variety is developed or invented, that should not have been invented earlier by any scientist. So this is the first criteria. ठीक है, in the country where the rights are applied for. मतलब उस कंट्री में जहाँ पे इसके राइट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो उस कंट्री में वो वाली वैरायटी जो है, वो जो प्लांट है, दैट मस्ट हैव नॉट बीन इन्वेंटेड. मतलब पहले उसकी इन्वेंशन नहीं हुई होनी चाहिए. सेकंड है कि न्यू प्लांट मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर अवेलेबल वैरायटीज. तो जो नई वैरायटी है, जो इन्वेंशन हुई है, जिसके लिए उसको प्रोटेक्शन मिल रही है ब्रीडर को, वो पहले मतलब दैट शुड बी दी न्यू, मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी अदर अवेलेबल वैरायटीज. मीन्स कि वो जो दूसरी कोई वैरायटी है उससे अलग होनी चाहिए. तो उसका जो करेक्टर है, दैट शुड बी डिफरेंट देन दोज वैरायटीज विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड. तो ये यहाँ तक क्लियर है ना? अप टू दिस आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. बड़ा मैं स्लोली आपको ये कवर कर रहा हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीओवी, और ये आई थिंक इन द लास्ट एग्जाम, ठीक है ना, जो सीनियर से आपके उसमें आया था ये यूपीओवी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये टू क्राइटेरियाज वी हैव कवर्ड. देन थर्ड इज द प्लांट मस्ट डिस्प्ले होमोजेनिटी. The plant must display
होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का है कोई आइडिया? नहीं दिया आपको मालूम है कि एक हेट्रोजेनिटी होता है, एक होमोजेनिटी होता है। तो होमोजेनिटी का सर क्या? वो मीन सेम। हाँ सेम, जो सेम कैरेक्टर्स हो उसको होमोजेनिटी कहते हैं। तो मतलब दी प्लांट्स मस्ट डिस्प्ले होमोजेनिटी, मतलब जो प्लांट निकलेगा उसमें जितने भी वो प्लांट्स उसके आगे जो वैरायटी है, देयर शुड बी होमोजेनिटी, देयर शुड नॉट बी हेट्रोजेनिटी। मीन्स कि वन प्लांट टू वन प्लांट देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, ठीक है ना, दे शुड बी दी सिमिलर कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये होमोजेनिटी है। Then is the trait or traits unique to new variety, ठीक है ना, जो उसकी जो नस्ल है, ट्रेट्स होता है नस्ल, वो जो न्यू वैरायटी है उसके बराबर होनी चाहिए। द ट्रेट आर ट्रेट्स यूनिक टू न्यू वैरायटी, ठीक है ना, दैट शुड बी यूनिक टू द न्यू वैरायटी, must be stable so that the plant remains true to type। मीन्स की प्लांट रिमेन्स ट्रू टू टाइप, आगे आप लाइन क्लियर करेंगे तो आपको पता चले, दैट शुड बी ट्रू टू टाइप आफ्टर आफ्टर रिपीटेड साइकिल ऑफ प्रोपेगेशन। अगर हम उसकी, ये शायद आपने कहीं प्लांट ब्रीडिंग का अगर किया होगा, जो आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसमें ये आपको आया होगा ट्रू टू टाइप क्या होता है, व्हाट इज ट्रू टू, जहाँ जेनेटिक्स में, जहाँ इसमें प्लांट ब्रीडिंग में, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट कि ट्रू टू टाइप में अगर हम उसमें से प्रोपेगेशन, फर्दर प्रोपेगेशन करते हैं, जैसे एक वैरायटी है उसमें से जब सीड उसकी प्रोपेगेशन सपोज वीट ही है, कोई वीट की कोई अगर वैरायटी निकली है, उसके बाद उसकी जब हम प्रोपेगेशन मींस कि नेक्स्ट ईयर अगर वो सीड वही वाला वैरायटी का सीड लगा रहे हैं, तो वो दैट शुड बी दी सेम, मतलब दैट शुड बी दी ट्रू टू टाइप, मींस कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो पहले वैरायटी निकली थी, जो उसके जो करेक्टर्स थे, उसके बाद में जब उसके सीड बना, सीड के बाद में फिर जब प्लांट्स आएंगे तो दैट शुड बी दी ट्रू टू दी प्रीवियस वैरायटी, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस अमंग दोज प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब है कि जो भी वैरायटी निकलेगी जिसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसमें ये चार करेक्टर्स होने चाहिए अंडर यूपीओवी ने, ये this criteria this UPV has made, these four different criteria that should meet। So then is the members as of October 2015, ठीक है ना, ये डाटा पुराना है कि 2 अक्टूबर 2015 को इसके कितने मेंबर थे, दिस वर दी 74 parties were members of UPOV, 74 countries were the member of this UPOV in डाटा जो है दैट इज ऑफ अक्टूबर टू 2015। तो इसमें फर्स्ट इज दी अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, then Albania is there, then these are the countries, ठीक है ना, if you can remember then it's well and good। yeah, African Intellectual Property Organization, then is the Albania, then is the Argentina, Australia, इसमें some of the names have been written there, then Australia, then Belgium, then is Bulgaria, Brazil, Canada, ठीक है ना, Canada is also there, China is there, Germany is there, Italy, Japan, Mexico and Kenya, ठीक है ना। These are the members of this UPOV, these are the countries, if you can remember then it's good, if you cannot remember then even then you must know the major countries which are the members of the UPOV। first is the African countries are there, then is the Albania, Argentina, Australia, Belgium, then is Bolivia, then Brazil, Canada, China, Germany, Italy, Japan, Mexico and Kenya। So these are the countries which are the member of this UPOV। Then it's a system of protection, you know, what is the system of protection of this UPOV? The convention defines both how the organizations must be governed and run, and the basic concept of plant varieties protection that must be included in the union। These concepts include, ये जो concept हैं regarding this UPAV, so there are at least 6 concepts are there। First is the criteria for new varieties to be protected
नोवेल्टी, डिस्टिंक्शन, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। criteria for new variety to be protected, novelty, then this is the distinctions, then uniformity and stability. Then second is the process for application for a grant. मतलब ये एक कुछ इसमें अंडर जिस यूपी विच आर द डिफरेंट प्रोसीजर और स्टेप्स वो डिस्कस कर रहा है इसमें, ठीक है ना। ये मेरे को नहीं लगा कि इसने के भाई ही हैज इंक्लूडेड इट, हो सकता है आपके उसमें टॉपिक के अंदर आए। Then is the process for application for a grant, how this protection is given. Then is intellectual property rights conforms to an approved breeders. Then exceptions to the right conformed to the breeder. ये मतलब इसमें different concepts हैं जो इसके अंदर discuss किए गए हैं. Then required duration of breeder's right. Then events in which a breeder's rights must be declared null and void. तो ये है, दिस इज ओनली दिस डिफरेंट concepts have been covered under this UPO. तो यहाँ इसमें as far as this book is concerned, it's very shortly, in very short form it has discussed what is UPOV. You know, we have covered this UPOV, which is very short and it will be point. Only the what is UPOV is there, then what is this history is there, then what are the different criteria that variety must meet for getting the protection. This is the this is all regarding this UPOV. Then we come to the next is that is under your topic, that is PPV and FR Act 2001. That was UPOV. This is PPV. PPV क्या है? PPV is protection of plant varieties and farmers right act. ठीक है, PPV and FR farmers right act और PPV से बनता है protection of plant varieties, protection of मतलब plant varieties and farmers right act, PPV and FR. Now we will discuss this PPV and FR Act 2001. PPV से बनता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड FR से बनता है फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है, दैट इज 2001. एक्ट was passed by the Indian government in 2001. 2001 में ये एक्ट बना था, PPV and FR Act. The genesis system for protection of plant varieties was developed integrating it was developed by integrating the rights of breeders and village committees. How it was this act was passed by the integration of the rights of breeders and farmers and village committee. ब्रीडर्स और जो विलेज कमेटी थी उनकी मतलब इंटीग्रेशन से, दोनों के संबंध से, दोनों को मिला के ये एक्ट बना है. मतलब ब्रीडर्स, फार्मर्स एंड विलेज कमेटीज एंड टेकिंग केयर ऑफ द कंसर्न्स फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स. इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स मतलब जो इसमें बेनिफिट होगा वो बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि इसमें कौन कौन से हैं? एक तो मतलब है ब्रीडर्स, राइट्स ऑफ ब्रीडर्स, फार्मर्स एंड विलेज कमिटीज एंड टेकिंग केयर ऑफ द कंसर्न्स फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स. इक्वल शेयरिंग जो है उसमें बेनिफिट्स की होगी. फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, कि ये जो एक्ट बना है, विच एक्ट? PPV एंड FR एक्ट जो 2001 में बना है. What are its objectives? इसके objectives क्या थे? What are its objectives are there? First is to provide for the establishment of an effective system for protection of plant variety. First जो इसका objective है, that is to provide for the establishment of an effective system, कि एक effective system बनाया जाए. तो उसका objectives क्या है इसका?
कि इफेक्टिव सिस्टम बनाया जाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी। प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम बनाया जाए। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है पीपीवी एंड एफआर का, कि कोई भी एक सिस्टम स्टेब्लिश किया जाए जिससे जो प्लांट वैरायटीज है उसको प्रोटेक्शन मिले। और दूसरा है कि टू प्रोवाइड फॉर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स। टू प्रोवाइड मतलब फार्मर्स और जो ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर है, उसको उसका राइट मिले, उसको उसका अधिकार मिले। ये सेकंड है। देन इज टू स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट मतलब बढ़ावा देना। टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री। क्या इससे क्या फायदा होगा कि जो सीड इंडस्ट्री है वो उसमें बढ़ावा आएगा, उसमें स्टिमुलेशन होगी। स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेशन मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। एंड फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री, और जो सीड इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट को स्टिमुलेशन मिलेगी तो उससे क्या होगा कि that will help in the growth of the seed industry. These are the three benefits are there. Then fourth is to ensure availability of high quality seeds. To ensure high quality seeds, जो आपको उत्तम मतलब क्वालिटी के उत्तम जो क्वालिटी के जो सीड हैं वो मिलेंगे। To ensure availability of high quality seeds and प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज टू फार्मर्स, और फार्मर्स को जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज के प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। ये दिस इज द फोर्थ वन। देन द फिफ्थ वन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट वैरायटीज। ये दिस इज द अगेन रेपुटेशन कि प्लांट वैरायटीज को जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड सिक्स्थ वन इज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री टू अवेलेबल हाई क्वालिटी सीड। ये रेपुटेशन ही है इसमें, to promote growth of seed industry to available high quality seed। एक तो सीड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा जिससे हाई क्वालिटी के सीड्स मिलेंगे। तो अब इसमें क्या है कि 6 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज, ठीक है ना, इसमें एक कोई सिस्टम जो इफेक्टिव स्टेब्लिश किया जाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज। और सेकंड इज टू प्रोवाइड फॉर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स, कि जो फार्मर्स है और प्लांट ब्रीडर्स है उनको उसका अधिकार मिले। सेकंड इज कि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि उससे जो सीड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हो। और फोर्थ है कि जो हाई क्वालिटी सीड्स है और प्लांटिंग मटेरियल जो है वो उसकी फार्मर्स को अवेलेबिलिटी हो। और फिर है कि प्लांट जो वैरायटीज है उसकी प्रोटेक्शन हो। और जो सिक्स्थ है लास्ट है सीड इंडस्ट्री की ग्रोथ हो और हाई क्वालिटी के सीड जो है वो मिले। तो दीज आर दी 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। विच इज दिस एक्ट? कौन सा जो एक्ट है? पीपीवी एंड एफआर एक्ट। पीपीवी से मतलब आ गया ना समझ आपको, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, दिस वर द ऑब्जेक्टिव। देन हाँ सॉरी, 2 more objectives are there। दी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द फार्मर, फार्मर्स को ये जो ऊपर भी इसमें कवर कर दिया था कि फार्मर्स को उसका राइट मिले। और 8th इज टू प्रोटेक्ट प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, इसको फिर उन्होंने मतलब रेपिटेशन किया हुआ है। टू प्रोटेक्ट प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च, और रिसर्च को भी इसका जो है वो प्रोटेक्शन मिले। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ना। यहाँ तक कोई ऐसा तो नहीं है कि एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर टू यू? इफ दैट इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क यस नाउ। क्यों नेहा, क्लियर है ये? नेहा, दिव्या यस है? यस। हाँ, कोई इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं जैसे आपको रिपीटली कहता हूँ कि मेरे लेक्चर देने के बाद अभी मैं क्या है कि ये सारी ना जितने भी आपके लेक्चर्स मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैंने उसको किया है। तो इसकी मैंने सारे जो ये रिकॉर्डिंग है ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जितने भी मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो फिर मैं इसको उस पे यूट्यूब पे ना अपलोड करने जा रहा हूँ।
जितने दिए, जितने मैं पहले नहीं कर सका स्टार्टिंग में जो थे वो, क्योंकि वो इसका प्रोसीजर नहीं मेरे को आ रहा था कि हाउ टू रिकॉर्ड इट, लेकिन उसमें बड़ा शॉर्ट में हमने उसको रिकॉर्डिंग की थी वो सुखवंत जी ने। लेकिन अब मैं जो फुल जो आपका लेक्चर है 50 मिनट्स का, 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, वो फुल रिकॉर्डिंग मैंने आज उसको काफी मॉडिफाई की है। और आज मैं कोशिश कर रहा था कि इसको यूट्यूब पे अपलोड करूं, क्योंकि पहले भी मैंने कोविड के टाइम में, जैसे मैंने आपको बोला था, उस टाइम भी, क्योंकि उस टाइम हमारा माइक्रोसॉफ्ट का था ना, जो सॉफ्टवेयर था, जो जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट मीट, तो उसमें आपकी भी रजिस्ट्रेशन थी, क्योंकि वो कॉलेज की तरफ से था। तो उसमें बड़ा इजी वे था, उसमें मैं आपके साथ स्क्रीन भी बड़े इजी वे में शेयर कर लेता था। और उसमें जो ये डाउनलोड जो होता था लेक्चर, वो भी बड़ा इजी था, और फिर उसको साथ में यूट्यूब पे भी वो अपलोड हो जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा जो गूगल मीट में, दिस इज समवट डिफिकल्ट। तो मैंने अभी सब उसको तैयार करके रखा है, लेकिन अभी मैं आज उसको कोशिश कर रहा था उस यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा था, कहते हैं कि ये दिस इज मोर देन 15 मिनट्स। तो उसका भी है, सम सोल्यूशन इज देयर, even then I may get success in uploading these lectures. तो आप फिर वहां से भी you can refer to those मतलब lectures, ठीक ना, which I going to upload in this YouTube, ठीक है। तो अंडर माय चैनल, उसमें मैं एक चैनल भी बनाऊंगा, पहले भी है, अगर आप यू गो थ्रू यूट्यूब, है ना, एंड अगर आप सर्च करो तो मेरे वो नाम से है, विनोद रामपाल के। मेरे जो वहाँ का भी, जहाँ पे मैं पहले भी था इंस्टीट्यूट में, शाहपुर कंडी तवी कॉलेज में, तो वहाँ भी जो मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए हुए हैं, वो उनकी भी रिकॉर्डिंग है। और इसकी भी यहाँ पे भी जो मैंने कई जो प्रोजेक्ट किए थे, आपका है ना वो एक वो ये जो था आपका वर्टिकल गार्डनिंग, इसके बारे में भी वो है। फिर हमने एक उसमें किया था कि मन्योर्स बनाने का ड्राई मैटर से, उसका भी है। फिर एक हमने फॉरेस्ट, ये ट्रीज का वन महोत्सव बनाया था ग्राउंड में, तो उसके भी मेरा उस पे भी लेक्चर है। देन जो हमने कंटीन के सामने अगर आप देखो, तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, जन शक्ति जल शक्ति, जल शक्ति जन शक्ति प्रधानमंत्री प्रोग्राम है ना, तो उसका भी मैंने, उसकी भी है रिकॉर्डिंग। तो ऐसे ये तो मेन मेन जो मैं बता रहा हूँ वो है। उसके अलावा जितने भी जो लेक्चर्स हम लेते रहे हैं अंडर दिस कोविड के टाइम, तो वो भी है उसमें। तो कभी आप देखना, whenever you get the time, you must go through those lectures which have been recorded, which have been uploaded on सर YouTube. आप लिंक शेयर कर देना अपने हाँ, यूट्यूब वो मैं आईडी का। शेयर करूंगा। और इसका भी जो है ना, मैं आई एम गोइंग टू, ये जो आपके मैंने 9 लेक्चर्स हैं मेरे पास अभी तक रिकॉर्डेड आपके, स्टार्टिंग में वाले नहीं हो सके, मैं आज कर रहा था, उसको मैंने नाम भी दे दिए हैं सबके। तो बाई नेम, मतलब जो, सॉरी, बाई नेम ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक जो है ना उसका भी मैंने लिखा है। तो आज वाला भी ये मिला के 10 हो जाएंगे, पहले वाले कुछ मिस हो गए, तो दैट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो आप मैं इसको करूंगा, कोई थोड़ा सा वो टेक्निकल सा काम है, इवन देन आई विल गेट द गाइडेंस फॉर दैट। तो फिर आप उसमें से भी आप देख सकते हो ना, सुन सकते हो उसको, लेक्चर को। तो ये है, ये था रिगार्डिंग दिस सेलेंट फीचर्स ऑफ पीपी एंड एफआर एक्ट। अब हम इतना ही करेंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि आज बाकी के आपके 3 मेंबर्स आर नॉट देयर। तो ये था जो मैंने आपको डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट्स। अब इसके अंदर आ जाता है सेलेंट फीचर्स ऑफ द पीपीवी एंड एफआर एक्ट, कि ये जो हम जो एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं। तो इसमें हम एक दो फीचर्स अभी इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द पीरियड, ये नहीं है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे मैंने उस टाइम आपको पेटेंट एक्ट के अंदर हम डिस्कस किया कि दैट इज फॉर दी 20 ईयर्स, ठीक है ना, 20 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन अंडर दिस पीपीवी एंड एफआर एक्ट में क्या है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सेक्शन 24 और सब सेक्शन 8
ऑफ सेक्शन 23, ये उसका जो एक्ट है उसके अंदर उसको मेंशन किया हुआ जो उसके क्लासेस हैं एक्ट की, है ना। उसके अंदर उसने कहा है द सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन इशूड अंडर सेक्शन 24 और सब सेक्शन है 8 और सेक्शन 23 शेल बी वैलिड फॉर 9 ईयर्स। तो इसमें कितना है, 9 ईयर्स है। इन द केस ऑफ 9 ईयर्स किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए, 9 ईयर्स इन द केस ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स। ट्रीज एंड वाइन्स की जो कोई इन्वेंशन होती है उसकी जो प्रोटेक्शन है दैट इज फॉर दी 9 ईयर्स एंड 6 ईयर इज दी इन केस ऑफ अदर क्रॉप्स, ठीक है। और मतलब 9 ईयर जो है ट्रीज के लिए है एंड वाइन्स, है ना, और WINS वाइन्स, एंड 6 ईयर इज दी फॉर दी अदर क्रॉप्स मे बी रिव्यूड एंड रीन्यूड। मतलब फिर इसके बाद जो 9 ईयर और 6 ईयर है उसके बाद इसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है ना। ये मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है कि 9 ईयर्स है, उसके बाद में उसको रिव्यू करते हैं कि इसको और प्रोटेक्शन देनी है तो उसको रिव्यू करते हैं, फिर उसको रीन्यू कर देते हैं। इट्स रिव्यूड एंड रीन्यूड, दोनों में फर्क है ना। रिव्यू मतलब कि उसका सारा देखना कि कैसा रहा पीरियड ये वाला था, फिर उसको रीन्यू कर देते हैं, फिर उसको नया कर देते हैं। रिव्यूड एंड रीन्यूड फॉर द रिमेनिंग पीरियड एज पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी फिक्स्ड बाय द रूल्स मेड, ठीक है ना। उसमें फीस देने के बाद फिर उसको रिन्यू किया जाता है, सब्जेक्ट टू दी conditions that the total period of validity shall not exceed। मतलब जो टोटल जो रिव्यू उसके बाद रिन्यू करने का जो पीरियड है उसमें भी आगे उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें जो टोटल वैलिडिटी है, जैसे 9 साल पहले दे दी तो टोटल दैट जो वैलिडिटी है वो कितनी है, इन द केस ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स 18 ईयर्स, मींस कि 9 साल पहले उसको दिया और फिर उसको 9 साल आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं, तो 18 ईयर्स हो गए for the trees and for the from the date of the registration of the varieties, and in the case of extent varieties जो दूसरी प्लांट varieties हैं उसके लिए 15 ईयर, जो 6 साल था उसको बढ़ा के मतलब 15 साल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट वैरायटी। मतलब ये हो गया कि 9 साल की और एक्सटेंशन जो है रिन्यू 9 साल के लिए और हो जाता है इन केस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जो ओरिजिनल उसकी वैलिडिटी है वो 9 साल ट्रीज एंड वाइन्स की है, 6 ईयर्स फॉर दी क्रॉप्स है। लेकिन जब उसको फिर रिव्यू करते हैं फिर रीन्यू करते हैं तो उसमें 9 साल और बढ़ जाते हैं, ट्रीज एंड वाइन्स की 18 ईयर्स हो जाती है और जो प्लांट्स है उसकी 15 ईयर्स हो जाती है। एंड इन द केस तो ये हो गया, देन अदर केसेस 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटीज। अदर केसेस मतलब अदर देन दिस, इसमें समझ नहीं आया कि ये और अदर केसेस कौन से है। इन अदर केसेस जो है हो सकता है उसके माइंड में कुछ हो, इन अदर केसेस 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वैरायटी। मतलब अदर देन ये दो जो कैटेगरी की है हमने, थर्ड जो कैटेगरी है टोटल मिला के उसको 15 साल का मिलेगा, ठीक है ना। पहले जो ट्रीज एंड वाइन्स 18 ईयर्स और जो वैरायटीज है एक्सटेंट वैरायटीज उसमें है 15 ईयर्स, देन अदर केसेस जो रिमेनिंग जो कोई केसेस होंगे उसके लिए भी 15 साल है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी regarding this period of protections। then comes the breeder right। हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे breeders right। breeders मतलब हमने इसमें डिस्कस किया ना, farmers rights are there, then breeders rights are there। तो breeders right, the certificate of registration private variety issued under this act shall confirms an exclusive right as the breeders or his successor or his agent or license to provide, to produce, sell, then market, distribute, then import or export of their variety। मतलब ये ब्रीडर्स का राइट है। क्या क्या है उसका मतलब राइट, द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर ए वैरायटी इशू अंडर दिस एक्ट शैल कंफर्म एन exclusive right as the breeders or his successor। ब्रीडर जो ब्रीडर है जिसने वैरायटी निकाली है उसको भी उसको मतलब राइट मिलता है, और हिज सक्सेसर अगर उसकी डेथ हो गई है
तो उसका जो सक्सेसर है उसको भी राइट, किस चीज का राइट मिलता है, जहां उसके एजेंट को, मतलब ब्रीडर को भी राइट मिल सकता है, जैसे हमने अंदर वो जो था प्रॉपर्टी एक्ट 1970 में किया था ना कि लीगल हायर जो है उनको वो कर सकता है, जहाँ उसकी जगह पे जो सक्सेसर है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी ये है कि ये जो राइट है उसके जो सक्सेसर को मिल सकता है, उसके एजेंट को मिल सकता है, जहाँ और लाइसेंसी, जो उसका लाइसेंसी है, उसको जिसको उसका आगे लाइसेंसी मीन या उसके आगे उसको लाइसेंस दिया हुआ है, तो मतलब ब्रीडर्स को मिल सकता है, सक्सेसर को मिल सकता है, उसके एजेंट को मिल सकता है, देन इज सॉरी उसके एजेंट को, जहां उसके लाइसेंसी को क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड, टू प्रोड्यूस, सॉरी टू प्रोड्यूस मतलब पैदा करनी वो वैरायटी, सेल, मार्केट, देन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, ये चीजें हैं। किस किस चीज का राइट मिलेगा उसको, प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ देयर वैरायटी। तो ये सब चीजें हैं जिसका उसको ब्रीडर को इस चीज का राइट मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे करते हैं फिर आप यू डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर इट। तो टुडे वी हैव डिस्कस two act we have discussed today. So what was the first? UPOV, ठीक है ना, UPOV we have discussed, then उसके different what are the different criteria for the protection of the variety, था वो किया, then how many members are there of this UPOV, then we discussed PPV and FR Act 2001. So what are the objectives of this act, you know, what are its objectives are, of the acts are there, then what are the, then we were discussing the salient features of PP and FR Act 2001, इसके salient features कौन कौन से हैं, उसके अंदर हमने डिस्कस किया पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फर्स्ट, देन इसके अंदर हम डिस्कस किया ब्रीडर्स के राइट्स, व्हाट आर द ब्रीडर्स राइट्स। तो यहाँ तक हमने इसमें जो सेलेंट फीचर्स में ये दो चीजें डिस्कस की हैं। अब जो थर्ड है पेमेंट ऑफ एनुअल फीस जो इसकी देनी है, वो विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट, वी विल कंटिन्यू दिस एक्ट। ये काफी लंबा है एक्ट, तो इट विल टेक 2 more लेक्चर्स ऑन दिस एक्ट, क्योंकि जैसे 1970 का एक्ट काफी लंबा है, तो ये 3-4 एक्ट्स हैं जो आपके इसके अंदर हैं, दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वन ऑफ देम ये है जो कि इज क्वाइट लेंथी, तो इट विल टेक मोर 2 lectures more, है ना। तो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हेन इट विल कम टुमारो, आई थिंक योर हॉलीडे, है ना, कल 15 अगस्त है ना आपके यहाँ, क्यों नेहा कल आपकी छुट्टी है ना? सर छुट्टी का तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। ये आएगी छुट्टी तो आएगी, पता नहीं आपको तो नहीं बुलाते, फैकल्टी को शायद बुलाते हैं अब 15 अगस्त को। पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ करना है तो है, आगे पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलो, हमारे तो अभी इधर 14th ही है आज, हमारे अभी 14th नाइट है हमारा, तो अभी दिन चढ़ेगा, यस है सर। ना। यहाँ पे एक दिन हम पीछे है ना, कनाडा एक दिन पीछे रहता है। यहाँ रात के मतलब बज रहे हैं 12:30 ऑलमोस्ट, तो आपके बज रहे हैं अभी मेरे ख्याल 10:30, कितने हो गए हैं आपके? यस सर, हाँ 10:46। 10:46 हो गए हैं ना, तो अभी हम पीछे हैं आपसे इन कनाडा। तो चलो ठीक है, लेट अस, आपको आ जाएगा नोटिस, यू विल गेट द नोटिस, तो मेरे को भी शायद मेल आएगी अभी, क्योंकि अभी तो आपके मॉर्निंग है ना, 3-3:30 बजे तक देते हैं वहाँ। तो देन इफ टुमारो विल बी हॉलीडे, देन वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो, मेरा देन पीरियड विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है ना। टुमारो इज ट्यूसडे and day after tomorrow will be the Wednesday. Then Wednesday I don't have your lecture, na? So then we will meet on Thursday. Okay, ठीक है? यस सर। Okay, then thank you. Okay, have a good day. थैंक यू सर। हाँ, thank you.